Okay, students, today we are going to learn about the control structure in Python and the control structures in the Python. And first we learn that there's the introduction to what is the Python and how to open the Python, what is the Python. So first, I'll inform that Python is a programming language. Okay, so Python is a programming language. If you just discuss about that, Python is general purpose, dynamic, interpreted, interactive, high-level, multi-platform, object-oriented programming language. It is easy to learn and used by many programmers uh, around the world. In that, we learn about the some input and print functions. Okay, and what are the input functions and then what are the print functions? So first we discuss about that input functions. What is the input function? The first thing is that the input function is used to take the input from the user side. User side means that आप ये कह सकते हो कि input statement is always return the value of a string type. ये क्या करता है कि value input के side से return करता है. And how to? So first we open the Python program. In my screen it is also, otherwise you can just go to all program options and from the all program option then go to the Python. There are different types of version. So I'm choose the Python 3.7 and Python ideally 3.7. This is a Python screen. It will take us some time. So now it is a Python screen, is the interactive mode of the Python. Up from the file, just take the new file and according to the book, this is it so that is the input function. So first we go to the input function, how to use that input function. Okay, now because the input function, yeah, input statement always return the value of a string type. Suppose that I have entered, I've taken any value, is like that. मैं अभी आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ. Suppose I have to take the any variable like the a is equals to, हमने यहाँ पे ले लिया integer int, then in double quotation उन्हें मैसेज डाल दिया कि enter your age, enter your age. So a equals to int and enter your age. Then हमने यहाँ पे प्रिंट स्टेटमेंट भी है. सो इन देखिए अभी हमने यहाँ पे सिर्फ ए लिखा था एंड बट हमने यहाँ पे एक चीज भी मिस्टेक हमारा यहाँ पे हम जस्ट वी यूज है एंड इनपुट, बिकॉज इन विदाउट इनपुट इट्स नॉट वर्क. ठीक है, इंटीजर टाइप डेटा है, देन इनपुट इंटर योर एज. आफ्टर दिस हमने प्रिंट यूज किया, प्रिंट स्टेटमेंट इज यूज टू गेट द आउटपुट फ्रॉम द, जो आप वैल्यू एंटर करोगे उसके लिए आउटपुट के लिए हम प्रिंट स्टेटमेंट यूज करते हैं. देन प्रिंट एंड व्हाट द प्रिंट हमने लिखा, आप मैसेज भी डाल सकते हो, योर इन द डबल कोटेशन योर एज, और आपका एज कहाँ स्टोर हो रहा है, इट इज स्टोर्ड इन अ ए. जो ए एज कहाँ स्टोर हो रहा है, ए में. तो जस्ट वी टाइप हियर द ए सिंगल कोटेशन. एंड इफ यू वांट टू सेव द फाइल, तो फाइल को सेव करने के लिए आप यूज कर सकते हो एंड आप कंट्रोल एस की भी यूज कर सकते हो. आई हैव सेव द फाइल डेस्कटॉप पे, मैंने सेव किया r3.py. so r3 is the name of the file and .py is the extension name. .py is the extension name. हाँ, .py is the आप extension name है, उसको आपको लगाना ही पड़ेगा. then .py. अब हम इसको एग्जीक्यूट कराते हैं. फॉर एग्जीक्यूशन हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के फॉर्म है, तो जस्ट वी सिलेक्ट द रन ऑप्शन और जैसे रन ऑप्शन में जाएंगे वी चूज द रन मॉड्यूल. हमने क्या चूज किया, रन मॉड्यूल F5. तो जैसे हमने F5 किया, अब आप यहाँ कह रहे हैं एंटर योर एज. तो अगर आप सपोज दैट आई हैव टू एंटर द एज, अगर मैंने यहाँ पे एज डाला 28 किसी का एज, एंड व्हेन यू प्रेस द एंटर की,
जैसे हमने एंटर की प्रेस किया, देखिए मैसेज क्या आ गया, योर एज इज 28, योर एज इज 28. इट मीन्स व्हाट, यस, व्हाट यू हैव टू एंटर. आपने जो कुछ भी एंटर किया वो आपका रिटर्न कर रहा है. देखिए आपका आया एज कि व्हेन यू, अगर आप दोबारा एग्जीक्यूट कराएंगे, देखिए आप दोबारा इसको एग्जीक्यूट कराते हो हम लोग, फिर हमने रन पे गया, हम रन मॉड्यूल पे जाने के बाद F5, या तो जस्ट आप F5 की भी प्रेस कर सकते हो, या थ्रू द दिस ऑप्शन रन माउस के थ्रू रन मॉड्यूल. और व्हेन यू क्लिक द रन मॉड्यूल, जैसे आपने रन मॉड्यूल क्लिक किया, एक मैसेज आया कि एंटर योर एज. तो यूजर्स एंटर देयर एज, सपोज दैट हैव टू एंटर द 12, 13 एंड प्रेस द एंटर की. जैसे हमने एंटर की प्रेस किया, देन वी गेट द आउटपुट इज अ 13. योर एज इज 13. आपका एज क्या है? 13. क्लियर? सो दिस इज द वे कि एक मेथड है, एक तरीका जिसके फ्रॉम टू दिस इज द यूज ऑफ. अब एक सिंपल प्रोग्राम था किसका? पाइथन का. दिस इज अ सिंगल प्रोग्राम ऑफ द पाइथन. नाउ आफ्टर द इनपुट फंक्शन, अब हमने प्रिंट फंक्शन की बात की, हमने प्रिंट फंक्शन भी आपको दिखा दिया कि हाउ टू यूज दैट एंड व्हाट आर देयर सिंटैक्स. देन प्रिंट फंक्शन, प्रिंट एंड व्हाट टाइप ऑफ द मैसेज यू वांट टू प्रिंट इट, सो दैट इन द एग्जांपल आई वांट, मैंने एग्जांपल आपको मैंने पहले दिखा दिया था कि ये आपका प्रिंट फंक्शन है. ये देखिए ये आपका प्रिंट फंक्शन, देन आप जो मैसेज चाहते हो आप वो मैसेज, एंड उसके बाद वेरिएबल नेम कि इन विच वेरिएबल्स की वैल्यू को आप चाहते हो. ठीक है. नाउ अब आफ्टर दिस, अब हम आते हैं अपने कॉन्सेप्ट पे, अपने टॉपिक पे. नाउ इन द पेज नंबर 90 एंड पेज नंबर 90 के बाद हम चलते हैं कंडीशनल स्टेटमेंट्स कि व्हाट इज द कंडीशनल स्टेटमेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट क्या है? The conditional statement is that if the any users, अगर आप में से किसी भी यूजर्स ने कोई वैल्यू इनपुट किया और उस वैल्यू में आप को फाइंड आउट करना कि ट्रू है या फॉल्स है. जैसे सपोज दैट इफ एनीबडी या एनीवन एंटर द वैल्यू 3, अब किसी ने 3 एंटर किया और 3 एंटर करने के बाद कोई ये सोच रहा है कि ये हमारा इवन है कि ऑड है, the value is even or odd, so how to check it. So for the check, इस वैल्यू को चेक करने के लिए हमारे पास रीजन है, हम ऑप्शंस यूज करेंगे, इफ स्टेटमेंट को हम यूज करेंगे, इफ यूज करेंगे, इफ एल्स इज हमारे पास, और इफ एलिफ है. इफ हम वन बाय वन सबके पास चलते हैं कि व्हाट इज द यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट. अगर हम इफ स्टेटमेंट की अगर बात करते हैं, द इफ statement is the most basic conditional statement in Python. जो if statement है, if statement is the most basic conditional statement in Python that allows you to test a condition before executing the statement. ये क्या करता है कि the if statement is the most basic conditional statement in Python that allows you to test the condition before executing the statement. Then इसका सिंटेक्स क्या आप देख सकते हो. The syntax is there. If, then condition expressions, then statement. एक आपको मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं इसके लिए. Just wait. Again we start the value and we use the if statement. In the if statement, we write here the a is equals to int, then input, in double quotation enter any value, then 2 times is a, हमने यहाँ पे 2 टाइम ब्रैकेट्स ओपन है तो 2 टाइम्स आपको ब्रैकेट 2 टाइम्स ब्रैकेट्स को क्लोज करना पड़ेगा. इफ a mod 2, दिस साइन जो परसेंटेज में आपको जो साइन दिखा रहा है, this is the mod sign, and this mod sign represent, it's return the remainder value. It is a return the remainder value.
and then comparison operator, then a mod 2 is equals to 0, they're two equals, then colon print this is even. आप यहाँ पे मैसेज डाल चेंज भी कर सकते हो कि मैसेज कुछ और भी है, दिस इज इवन नंबर एंड व्हाट, एंड प्रिंट थैंक यू। अब आप ये इसको एग्जीक्यूट कराते हैं, जैसे हमने इसको एग्जीक्यूट कराया, एग्जीक्यूट कराने के लिए, रन कराने के लिए क्या आगे हमारे पास ऑप्शन है, रन मॉड्यूल पे जाएंगे, F5 प्रेस करेंगे, जैसे आपने F5 प्रेस किया, सेव्ड हो गया हमारा फाइल, सेव्ड किया हमने फाइल को, एंटर एनी वैल्यू, मैसेज आ रहा है हमारा एंटर एनी वैल्यू, हमने यहाँ पे 5 एंटर किया या 6 एंटर किया, तो 6 इज इवन नंबर, ऑड नंबर, तो 6 इज इवन नंबर, जैसे 6 हम इवन नंबर पे करेंगे, एंटर, देखिए यहाँ पे लिख रहेगा दिस इज इवन, थैंक यू। अगर इन द केस अगर किसी यूजर ने 7 एंटर कर दिया होता, तो अब 7 एंटर करोगे आप, उस कंडीशन में क्या होगा, देखिए हमने अगेन इसको रन कराया और आई हैव टू एंटर द 7, इट्स ओनली रिटर्न द थैंक यू, धन्यवाद। उसने ये कुछ नहीं बताया कि आपका इवन है कि ऑड है। सो अब इस टाइप की वैल्यू को चूज करने के लिए, जब इवन और ऑड को देखने के लिए, वी यूज द इफ एल्स स्टेटमेंट। उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, सेकेंड स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट। एंड इफ एल्स स्टेटमेंट क्या रिटर्न करता है हमारा, if statement else statement is used to execute either of the block of statement from if or else statements, if or else statement, if or else statement, the meaning of that कि if the condition is true, अगर condition true है तो ये रिटर्न करेगा if statement का पार्ट, अगर कंडीशन फॉल्स है तो इट्स गो टू द फॉल्स स्टेटमेंट। जैसे एग्जांपल, मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूं, अगेन वी ओपन द सेम एज प्रोसेसर टू ओपन द पाइथन आइडियली हमने ओपन किया, एंड आफ्टर ओपन द पाइथन आइडियली, जैसे आपका पाइथन आइडियली ओपन हुआ, हम फाइल में गए, फाइल से हमने न्यू फाइल चूज किया और हम यहीं पे इफ एल्स के बारे में करेंगे। तो हमने यहाँ पे डिफाइन किया ए इज अ वेरिएबल, ए इस वेरिएबल को हमने किस टाइप का लिया, इंटीजर टाइप का। देन हमने यहाँ पे यूज किया इनपुट हमने यहाँ पे यूज कर दिया एंटर एनी वैल्यू, इंटर एनी न्यूमेरिक वैल्यू या इंटर एनी इंटीजर वैल्यू लिख सकते हैं, INTEZER, इंटर एनी इंटीजर वैल्यू। आप यहाँ पे एक मैसेज दे रहे हो, आइडेंटिफाई कर रहे हो कि आपको इंटीजर वैल्यू ही इनपुट करना है, तो देन आपने यहाँ पे क्या यूज किया, इफ a mod 2 is equal to 0, तो प्रिंट क्या प्रिंट करेगा, ये नंबर इज इवन। अच्छा, जब नंबर इज इवन होगा, अगर इवन नंबर, उसके बाद किस पार्ट में जाएगा वो, अब एल्स पार्ट। देखिए अब इसका मैं आपको एल्स पार्ट भी दिखा देता हूँ कि इफ यू यूज दैट लाइक दिस, तो प्रिंट द नंबर इज इवन, तो एल्स किस पार्ट में जाएगा, ये नंबर इज ऑड। देन आपको इसको थोड़ा पास में लाना पड़ेगा, इफ एल्स, और लिखना पड़ेगा आपको देन प्रिंट नंबर इज ऑड, नंबर इज ऑड। मतलब जो आप पहले जो नंबर यूज कर रहे थे वो ट्रू था, मतलब इफ द कंडीशन इज ट्रू सो इट इज रिटर्न द प्रिंट नंबर इज इवन। अगर नंबर सही नहीं हुआ तो वो क्या रिटर्न करेगा, फॉल्स। अगेन इसको सेव करते, कंट्रोल एस किया हमने, देन R5 या R6 कर लेते हैं हम, R6 R7.py। अब जैसे आपने इसको एग्जीक्यूट कराया, ये देखिए अब एंटर इन इंटीजर वैल्यू,
तो आप यहाँ पे कोई इंटीजर वैल्यू इनपुट कीजिए. सपोज दैट आई हैव एंटर द एनी, मैंने 3 यहाँ पे 2 इनपुट किया, तो 2 इनपुट किया तो नंबर इज इवन, बिकॉज वी नो दैट 2 इज इवन नंबर. अच्छा, अब आप कहेंगे सर कुछ और वैल्यू डालते हैं, तो आइए कुछ अलग वैल्यू डालते हैं. अगेन आई हैव एंटर द, चलिए मैं यहाँ पे 147, तो जैसे हमने 147 एंटर किया, ये लिख के अगर नंबर इज ऑड, बिकॉज 147 is not divisible by the 2 exactly. वो 2 से exactly divisible नहीं है. क्लियर?